So let's continue with our session. Visible to all? Can you see it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we have reached on the stage where we will try to learn about the different type of industrial robots and different type of robots overall by design, by their structure, and by their application. So basically our focus will be on industrial robotics, but nevertheless, as we are talking about robotics, so we'll be going through to the information about the types of robots overall used in different kind of works, different kind of applications in our society, in our commercial world, in our industry, or in our other research works. So here you can see there are three different categories for robots. The first is stationary robots, then wheeled robots, and then legged robots. So stationary robots are basically the robots which are not tracked robots, or which are not of we can say which are not of having any moving part, or any that kind of design which can help them to travel from one point to another. So basically they are fixed at a column and mounted on the ground. So that's why they are called the stationary robots. And we have Cartesian, cylindrical, Scara, spherical, articulated, and parallel type of robots in stationary robot category. So basically these are the robots which are generally used in industry for any application and for any work. Then we have wheeled robots. Wheeled robots are nothing but the robo designs and structures which are having wheels: single wheel, two wheel, three wheel, four wheel, six wheel, and then tracked robots. Tracked robots, so obviously they also come in the consideration when we talk about the industrial robotic systems, because in many application, in heavy engineering industries, in sheet metal industries, in automobile industries, we have tracked robots as well. Like the robot will be installed on a track, and it will move from one point to another on the track as well, and then it will do the application at desired location, or wherever the requirement is. So on the basis of the wheels, so we have and they are uh, well checked in different kind of applications, in different kind of conditions, in different kind of scenarios. So now you see that when we talk about robotics, it's a vast area, it's a vast field to discuss upon, to learn and to go for R&D in this field. But mainly our focus will be on industrial type of robotics in this session. So moving ahead, रोबोट्स, तो इन सब का नाम जो है मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर दूं, इन सब का नाम इनके डिजाइन के अकॉर्डिंग रखा गया है। इनका ऑपरेशन जो है वो जो बेसिक फंडामेंटल होता है रोबोट्स का वही है ऑटोमेटिक ऑपरेशन करना, सम एक्सटर्नल कंट्रोलर और विद देयर ओन कंट्रोलर, ठीक है।
और वो टेली रोबोट्स भी हो सकते हैं जो रिमोट कंट्रोल रोबोट होते हैं। तो किसी तरीके के रोबोटिक सिस्टम हो सकता है इनका, लेकिन इनका जो नाम रखा गया है बेसिकली रखते हैं, व्हील्ड रोबोट की कैटेगरी में क्यों नहीं रखते? चलिए इसके बारे में सोचिए थोड़ा सा, तब तक मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। सो स्फेरिकल रोबोट्स जो होते हैं वो एक तरीके का क्लोज्ड एनवलप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ही इसकी मोटर असेंबली लगाई जाती है जो कि इसको मोशन प्रोवाइड करती है। और जैसा कि आप देख सकते हो इस फिगर में, इसका जो ये इमेज है, इस इमेज में इसके स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि दो सर्कल साइड बाय साइड जो हैं वो डिजाइन किए गए हैं, यानी कि वो सर्कल जो है साइड बाय साइड कटा हुआ है। यानी कि जब ये जो लॉन्ग शाफ्ट है इसके बिल्कुल सेंटर से गुजर रही है, तो ये लॉन्ग शाफ्ट जब मोटर की हेल्प से रोटेट करती है तो ये सर्कल जो है ये भी रोटेट करता है। एक्सक्यूज मी, गौरव, ओके, there is a thing actually, just want to confirm. I have got 25 students here. Let me check first. 24 students actually, and the list I have is not that big, so I just want to confirm. Shubham Kumar, can you Yes, hear sir. me? Shubham, Yes, sir. आपका प्रोजेक्ट क्या है? Can you tell me your project, internship project? Sir, using robotic arms for factory automation. Okay, using robotics arm for factory automation, that's fine. Aparajita Kumari, Yes, sir. what is your project for internship? Sir, same using robotics arm for factory automation. Yes, sir. Same है. Okay, Same है, sir. so I'll say the names. You just say me present sir or yes sir, ठीक है? I'll confirm के कितने students जो present हैं और मेरे पास जो list आई है वो कितने students की हैं। भानु, Yes, sir. सचिन, Yes, sir. सुनिधि, Yes, sir.
खुशबू, Ritik Sethi. Ritik, can you hear me? Yes, basically just wanted to confirm that you are here or not. Adarsh, Yes, sir. Nayan, Yes, sir. Ankush, Yes, Abhay, sir. Muskan, Yes, sir. Rajnandini, Yes, sir. Varun, Yes, Yes, sir. sir. Sahil, Yes, sir. okay, Hitendra, Yes, sir. Kalpana, Kalpana, Kalpana has not joined the session. Okay, that is fine. If Kalpana, Gaurav, Vijay, Yes, sir. Chinmay, Chinmay. Yes, sir. Yes, sir. I have 22 students total, and out of these 22, two are absent. Still, 23 people has joined the session. So can you tell me? Sir, you are included in this. No, yeah, okay. I am included in this, but still, two students who are absent, but still the number is 22. As per my record, it should be 20. Whose name has left? Have I mentioned everyone? Lokeshwar. No, sir. No, So what is that was the issue I just wanted to identify. Lokeshwar, your project is not that robotic SAM, or I guess you are not in this project. I'm with automation with Drive. You are in automation only. Yes, sir. So you not need to join this session, Lokeshwar. Rajkumar Prajapati, same with you. As I yes, Rajkumar, you want to say something? Sir, automation integration with drives. Yes, so you are not in this project. So you not need to join this session for robotics, Lokeshwar and Rajkumar. You can leave and you can do your work, because this project, this session is not for you, because as this session is only for the students who has joined the internship projects related to robotics only. You getting my point? सूरज सर बोल रहे हैं अटेंड करने को. Okay, okay. So if Suraj has mentioned you to attend it, okay, then it's fine. It's fine. Okay. So that was the point I just wanted to confirm. Okay, we'll continue with our session. Lokeshwar, is the same thing with you? Yes, sir. Okay, okay. चलिए कोई बात नहीं. अगर उन्होंने बोला है तो आप अटेंड कीजिए, कोई इशू नहीं है. So what I was saying कि स्फेरिकल रोबोट से एक क्लोज्ड एनवलप होता है, इसके अंदर ही इसका पूरा सिस्टम जो होता है इसके अंदर ही बिल्ड किया जाता है, और इस क्लोज्ड एनवलप के अंदर ही रोटेटिंग शाफ्ट होती है जो कि एक मोटर से कंट्रोल की जाती है. सिमिलर वे में वो सर्वो होती है, और चाहे वो छोटी सर्वो हो या बड़ी सर्वो हो, सर्वो मोटर होती है. और एक बैलेंसिंग सिस्टम भी इस रोबोट में लगाया जाता है, क्योंकि ये एक स्फेरिकल सिस्टम है, तो स्फेरिकली अब ग्राउंड पे पूरा इसका जो सरफेस है वो टच नहीं हो रहा है. कुछ एक पार्ट है इसके ओवरऑल सरफेस का, इसके बॉडी सरफेस का कुछ ही पार्ट है, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ पार्ट, जो एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे टच करता है ग्राउंड को, तो बैलेंस बनाना उस टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट
होता है। दैट्स वाई काउंटर बैलेंसिंग सिस्टम इसमें दिया जाता है, जो कि इसको बैलेंस्ड करके रखता है, सीधी कंडीशन में रखता है। और उस शाफ्ट की मदद से जो ये कट लगे हुए हैं इसके साइड बाय साइड दोनों साइड्स में, और इन कट्स के थ्रू जो है गियर्स या फिर एक जो है जिसको बोलते हैं ना रैक एंड पिनियन टाइप का एक स्ट्रक्चर, रैक एंड आई डोंट नो वेदर you have heard the term rack and pinion gear assembly earlier, because you all are of electronics and electrical department. So let me tell you, rack and pinion type, the gear assembly is like just I'll try to explain to you guys what rack and pinion exactly is. In rack and pinion, we have this type of slot in one side, okay, and then we have this type of slot on the other side. So this is called the rack and pinion gear assembly. Okay, this will be the one part rotating, and this will be the other part rotating. So by the help of each other, they kept moving. So this type of system is provided here, where you can see the cut, so that the spherical keep moving as the shaft rotates within the structure. तो इस तरीके से spherical robots जो हैं मोशन में आते हैं, इस तरीके से वो चलते हैं. तो बेसिकली इस टाइप के रोबोटिक सिस्टम, अब आप समझ ही गए होंगे कि स्फेरिकल रोबोटिक सिस्टम है, तो इसका बहुत ही ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रियल स्कोप नहीं है, बट स्टिल इट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सर्वेलेंस, पेट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग, जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन, प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन जिसे बोलते हैं. जैसे अभी एक रोवर गया है मार्स पे, ठीक है, उससे पहले मून पे कई सारे रोवर जा चुके हैं. तो इंस्टेड ऑफ व्हील्ड बोट्स और व्हील्ड रोवर्स, वो पहले जो है स्फेरिकल सिस्टम्स छोटे छोटे बनाते हैं, जो कि एक एसएलवी के अंदर जाते हैं, और फिर लॉन्च होने के बाद जब वो लैंडिंग करते हैं किसी प्लेनेट के सरफेस पे, तो उनको वहां पे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड या किसी और भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस उनको प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उनको कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो कि उनको बाहर से मोशन देगा. वो अंदर ही उनके अंदर रोटेटर होता है, और वो रोटेटर ही उनकी बॉडी को जो है शफल करता है सरफेस पे. तो इस तरीके से प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन में काम आते हैं, अंडर वाटर काम आते हैं, या अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन में भी काम आते हैं इस टाइप के रोबोट्स, क्योंकि अब इनमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि हम चले, या जो कि जैसे टायर हैं या लेग हैं कुछ भी. तो इस टाइप के रोबोट्स बनाए जाते हैं अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन में. जो ये रोटेटिंग शाफ्ट होती है, इससे फिन्स अटैच किए जाते हैं, हार्ड फिन्स, मेटेलिक हार्ड फिन्स. तो जैसे ही शाफ्ट रोटेट करती है, वो फिन्स रोटेट करते हैं, और उसके थ्रू वो पानी में जो है बॉडी की मोशन जनरेट करते हैं. तो इस तरीके से ये पानी में चल सकते हैं, और इसलिए इनको अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन में डीप सी साइंस ऑफ डीप सी जैसे टॉपिक्स होते हैं ना, तो उनमें जो भी रिसर्च की जाती है वो इसी टाइप के रोबोट्स को यूज करके की जाती है. इसके अलावा सर्वेलेंस में ऑब्वियसली जैसे डीआरडीओ है, या फिर काफी ऐसी संस्थाएं हैं जो सर्वेलेंस के फील्ड में काम करती हैं, जिनको सर्वेलेंस बहुत जरूरी होता है, बॉर्डर पेट्रोलिंग, ठीक है, तो सिक्योरिटी में. तो इस तरीके के रोबोट्स उस फील्ड में काम आते हैं. सो अब मुझे बताइए कि व्हील्ड रोबोट की कैटेगरी में ये स्टेशनरी रोबोट की कैटेगरी में क्यों है, ये व्हील्ड रोबोट की कैटेगरी में क्यों नहीं है? एनीवन? सर शायद इनर पार्ट है वो मूव नहीं कर रहा, केवल आउटर बॉडी मूव कर रही है, इसकी वजह से स्टेशनरी इनर पार्ट वाला हो गया, तो इसलिए कंसीडर नहीं करते हैं. quite close to that. Anyone else? सर रोबोट का मोशन जो इनर पार्ट है सर, उसके रिस्पेक्ट में 0 है मोशन. रोबोट का मोशन इनर पार्ट के रिस्पेक्ट में 0 है. Okay. So that's good. You have thought of it, and your points are quite valid at some extent. The reason being that it is not kept in the wheeled robot category is, व्हील्ड रोबोट की जो स्ट्रक्चर अगर आप देखो, तो उसमें जो
ग्राउंड से टच पार्ट है वो व्हील्स हैं रोबोट के। कोई भी रोबोटिक सिस्टम है उसके व्हील्स ग्राउंड से टच हो रहे हैं और वो मोशन जो प्रोवाइड करवाते हैं वो व्हील्स उसको प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन इस बॉडी में अगर आप देखोगे तो कहीं भी हमने व्हील यूज नहीं किया है, तो यानी कि पूरा रोबोट ग्राउंड से टच है। तो जो ग्राउंड से टच रोबोट होगा वो एक तरीके से स्टेशनरी रोबोट की कैटेगरी में आएगा। यू आर राइट एट सम एक्सटेंट, बट दिस इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड इट कि इसको स्टेशनरी रोबोट की कैटेगरी में रखा जाता है। स्फेरिकल रोबोट्स का जो मेन बॉडी है रोबोट की वो सीधी ग्राउंड के टच में आ रही है, दैट्स व्हाई इट इज इन स्टेशनरी रोबोट कैटेगरी। ओके, अब समझ आ गया आप लोगों को स्फेरिकल रोबोट्स के बारे में? Yes. Okay. Yes, sir. Now we will see how it works. Now you see the body is touching the ground directly. ये देखिए काउंटर बैलेंसिंग सिस्टम, कभी भी रोबोट जो है बैलेंस अगर डिसबैलेंस होता है तो ये बैलेंसिंग सिस्टम जो है ये इसको स्टेबल बनाकर रखता है। दिस इज हाउ द व्हील्ड रोबोट्स वर्क। आप भी कभी अगर रोबोट डेवलप करना चाहें, मतलब आपको कभी ऐसा आइडिया है आपकी इसमें आपका इंटरेस्ट बने कि यस यू हैव टू बिल्ड रोबोट, यू हैव टू वर्क ऑन दीज काइंड ऑफ मशीन्स, तो आप किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर के बारे में सोच सकते हैं, एंड स्फेरिकल रोबोट इज वन ऑफ देम। So now you see that how spherical robots work actually. और इसमें आप किसी भी तरीके का एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को मॉनिटर करने के लिए आप इसमें सेंसर टेम्परेचर सेंसर्स लगा सकते हो, आप इसमें ह्यूमिडिटी सेंसर लगा सकते हो, मॉइस्चर सेंसर जिसे बोलते हैं, या फिर आप इसमें दूसरे टाइप के इंफ्रारेड रेज, स्पेक्ट्रोमीटर्स, कुछ भी आप छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कैसा भी सेंसर लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ योर रोबोट। आपका रोबोट का डिजाइन जिस तरीके से कन्वीनियंट है उसी हिसाब से आप उसमें सेंसर यूज कर सकते हो, एंड देन यू कैन यूटिलाइज योर रोबोट इन सम गुड वर्क्स। तो उसके बाद अब हम आते हैं सेकंड टाइप ऑफ रोबोट पे, एंड दैट इज कॉल्ड स्कारा रोबोट्स। स्कारा रोबोट्स का मैं बता दूं आपको इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपैक्ट है आज के टाइम पे। दे आर वेरी सेकंड आफ्टर द आर्टिकुलेटेड रोबोट्स। क्योंकि ऐसा क्यों है? वैसे तो आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है जिस तरीके से कोबोट्स तैयार हो रहे हैं, दैट इज कोलैबोरेटिव रोबोट्स, तो आने वाले टाइम में स्कारा रोबोट्स जो हैं आर्टिकुलेटेड रोबोट से भी आगे निकल जाएंगे, as because they are very fast, they are very precise and they are very handy। ना तो बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होता है, छोटे होते हैं साइज में, बहुत फास्ट होते हैं और बहुत प्रिसाइज होते हैं, तो इसको स्कारा रोबोट बोला जाता है। एंड द फुल फॉर्म आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सिलेक्टिव कंप्लायंस आर्बिट्रेरी रोबोटिक मोशन आर्म। ओके, तो इसको वैसे असेंबली आर्म भी बोलते हैं, सिलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म, क्योंकि ये जनरली जो है असेंबल की जाती है। और इसकी एप्लीकेशन जो है ये इंडस्ट्री में बहुत वास्ट है। स्क्रूइंग पहले नंबर पे, स्क्रूइंग की जाती है, जो कि मोबाइल्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एज आई हैव वर्कड इन सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने काम किया है वहां पे, तो जब हम असेंबली करते थे ओक्टा की रियर के साथ, एंड we used to screw the model, तो वो कोई हाथ से नहीं किया जाता था। we used to teach the robot, we used to program the robot, and after that robot generally works within the shift and completes the screwing of around 2 lakh mobiles per day। तो इस हिसाब से जो है वो चलता था, and the teaching and programming was changed within model by model। जैसे कोई नया मॉडल आता था, जैसे नोट 10 आ गया था, S9 था, S8 था, उसके बाद नोट 10 प्लस नोट 9 था, ठीक है, और उसके बाद S10, ठीक है, S10 प्लस। तो जैसे जैसे मॉडल्स नए आते थे हम उसी के हिसाब से उसकी प्रोग्रामिंग टीचिंग चेंज करते थे। और वो अगर कोई मैनुअल प्रोसेस हो स्क्रूइंग का, जैसे अगर हमने मैन पावर लगाई है लाइन पे स्क्रूइंग करने के लिए, तो वो जनरली जो है 8 से 16 सेकंड के टाइम में स्क्रूइंग करते थे, यानी कि 8 सेकंड से लेकर, अगर 2 स्क्रू लगाने हैं तो 8 सेकंड, किसी मदरबोर्ड पे 3 स्क्रू लगते थे, किसी पे 5 लगते थे।
तो 16 सेकंड तक जो है टाइम जाता था। लेकिन जब रोबोटिक सिस्टम से वो इम्प्लीमेंट हमने किया एंड वी हैव टेस्टेड इट, और बहुत प्रिसाइजली बिना मदरबोर्ड को डैमेज किए और विद इन द टॉर्क लिमिट ऑफ द स्क्रू, टॉर्क लिमिट स्क्रू की क्या होती है, आई गेस इसके बारे में हमें पढ़ने की अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर टीचिंग अ स्क्रूइंग मॉडल। तो जब स्क्रूइंग करता था रोबोट, तो उसका जो है साइकिल टाइम 3 से 5 सेकंड के बीच में रहता था। सो नाउ यू कैन सी दैट हाउ फास्ट इट कैन डू द वर्क एज कंपेयर टू द ह्यूमन एफर्ट्स। जहां पे हमें 10 सेकंड या 12 सेकंड लग रहे थे, अब उस प्रोसेस के लिए हमें 3 सेकंड लग रहे हैं। सो दैट इज क्वाइट 3 टाइम्स क्विकर देन द ह्यूमन एफर्ट्स। सो उसी के बिहाफ पे उसके बाद पिक एंड प्लेस ऑपरेशन आता है। सो पिक एंड प्लेस के लिए भी स्कारा रोबोट्स को सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है इंडस्ट्री में, एज बिकॉज दे आर वेरी कन्वीनियंट, दे आर वेरी फास्ट एंड दे आर वेरी प्रिसाइज। अब एक कन्वेयर पे लगातार प्रोडक्ट आ रहा है, कन्वेयर चल रही है, प्रोडक्ट उस पे रखे हुए आ रहे हैं, उनको उठा के अगर मैनुअली बिन में रखें तो उसके लिए हमें एक कन्वेयर पे काफी सारे जो हैं मैन पावर को लगाना पड़ता है, या फिर एक मैन पावर जो कंटिन्यू काम कर रही है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए रेस्ट भी कर, उसके बाद टी ब्रेक भी होगा, उसके लिए जो है बीच में उसको ब्रेक भी पड़ेगा, उसको खाना भी खाना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब 8 घंटे की शिफ्ट में ये लगा लीजिए कि 1 घंटा तो 1 से 1.5 घंटा तो ब्रेकिंग का एंड ईटिंग का ये सब में चला जाता है। तो उस टाइम पे तो हमें कन्वेयर बंद करनी पड़ी, यानी कि उस टाइम पे प्रोडक्शन रोक देनी पड़ी। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट इंडस्ट्रीज हैज इम्प्लीमेंटेड इज कि उन्होंने पिक एंड प्लेस के लिए रोबोट्स को रख लिया। अब एक लाइन पे जहां पे 3 या 4 आदमी खड़े थे, एक स्टेशन पे एक आदमी खड़ा पिक एंड प्लेस पिक कर रहा है उसको और फिर प्लेस कर रहा है बिन में ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, लगातार वो उठा के कन्वेयर से बिन्स में रख रहा है सामान को, जो भी पैक्ड मटेरियल आ रहा है। अब उसके बाद दूसरे उससे कुछ दूरी पे दूसरा स्टेशन है, वहां पे दूसरा आदमी खड़ा है, क्योंकि वो सारे पीस तो उठा नहीं सकता ना, कन्वेयर तेज चल रही है, बहुत सारे पीस बन के आ रहे हैं, तो एक बार में एक ही उठाएगा वो या 2 उठाएगा। उसके जब वो उठा के उनको दूसरी साइड रखने जाएगा तब तक जो काफी सारे पीस आगे निकल जा चुके होंगे। तो उस कंडीशन में 2 या 3 मैन पावर को हमें वहां पे रखना होता था काम करने के लिए, और फिर उनका ब्रेकिंग भी है, सब कुछ है, क्योंकि वो ह्यूमंस हैं, आफ्टर ऑल दे आर नॉट मशीन्स, तो वो कंटिन्यू तो काम कर नहीं सकते ना। सो व्हेन वी इम्प्लीमेंटेड दीज रोबोट्स, अब उसमें क्या हुआ कि रोबोट्स कंटिन्यू एक बार प्रोग्राम कर दिया, अच्छे से टीच कर दिया, ड्राई रन ले लिया, पावर सप्लाई ओके है, सब कुछ ओके है, परफेक्टली गोइंग ऑन, कन्वेयर कैन रन फॉर 24 आवर्स कंटिन्यूअसली विदाउट एनी हर्डल, and robots can perform the pick and place operation without any hurdle even if for 365 days continuously। तो यहाँ पे बेनिफिट ये हो गया कि अब जो है बफर कम हो गया इंडस्ट्रीज का, यानी कि जो स्टॉक बन जाता था ना, कि प्रोडक्ट तो बन गया लेकिन अभी वो ना तो पैक हुआ है, ना उसकी जो है अभी सही से प्लेसमेंट हुई है, तो अब वो बफर कम हो गया, जैसा बन रहा है तुरंत की तुरंत पैकिंग पे। So that's why these robots are very useful in pick and place operation। पैकेजिंग मैंने आपको बताया, ये पिक एंड प्लेस ऑपरेशन वही होता है पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में, डिस्पेंसिंग, टेकिंग वन मटेरियल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जैसे कि कई रोबोट्स होते हैं जो सर्विस रोबोट्स के नाम से जाने जाते हैं, तो स्कारा रोबोट्स जो हैं सर्विस रोबोट के तौर पे भी यूज किए जाते हैं। जैसे कोई अगर मैकेनिक है, ठीक है, जैसे फॉक्सवैगन की जो इंडस्ट्री है जहाँ पे गाड़ियां बनती हैं, या फिर डाइमलर बेंज है जिसे मर्सिडीज बेंज बोलते हैं, तो वो जो गाड़ियां बनाते हैं उसमें आदमी काम कर रहा होता है, तो उसको टूल देने की ड्यूटी किसी आदमी की नहीं होती, वहां पे कोई हेल्पर नहीं होता। जब वो असेंबली कर रहे होते हैं कोई किसी क्रिटिकल पार्ट की, तो उनको टूल को उनको हैंड ओवर करने का काम रोबोटिक आर्म करती है। वो दूसरी जगह से टूल लेके आएगी और आदमी के पास लेकर खड़ी हो जाएगी, जब तक उसको जरूरत होगी तब तक वो आदमी काम करके टूल को रखेगा, उसके बाद वो रोबोट की आर्म में जैसे ही प्लेस करेगा, वो रोबोट की आर्म टूल को ले जाकर वापस उसके जगह पे रख देगी। सो दैट इज हाउ दे वर्क्स इन इंडस्ट्री, दैट इज हाउ दे आर वर्किंग राइट नाउ। इसे डिस्पेंसिंग कह सकते हो आप। और मटेरियल हैंडलिंग, ऑब्वियसली मटेरियल हैंडलिंग में अब शीट मेटल इंडस्ट्री है, बहुत ही गर्म, बहुत ही ज्यादा हाई हीटेड मटेरियल होता है, ठीक है, मेटल पार्ट्स होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह रखना, उसके बाद दूसरा प्रोसेस उसके ऊपर करना, जैसे कि हीट ट्रीटमेंट चल रहा हो तो हाई हीट से निकाल कर एकदम उसको जो है क्विंचिंग के लिए ले जाना, क्विंचिंग में उसको हाई हीटेड मटेरियल को एकदम से ठंडे ऑयल में या फिर अंडर वाटर या फिर कूल्ड एयर के नीचे रखा जाता है। अब लाल लोहे को आदमी तो उठा नहीं सकते क्योंकि मेटेलिक पार्ट है, तो बहुत ज्यादा हीट हो रखा है, उसकी तो रेडिएशन ही इतनी ज्यादा होती है कि आदमी मर जाए,
तो पास भी नहीं जा सकते, उठाना तो दूर की बात है। तो ऐसी कंडीशंस में रोबोटिक आर्म का यूज किया जाता है। दैट्स व्हाई दे यूज्ड इन मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेसेस एज वेल। So is it clear? Everyone now aware about the SCARA robots? Yes, sir. Yes, sir. Have you got an understanding of spherical and SCARA robots? Yes, sir. Okay. So now we will see how these robots work actually. See. How precisely this robot is working. You can see its working is mainly depends upon the calibration and teaching of robot. How precisely you have taught the robot and how precisely you have programmed the robot. That's all. और जो एक पीस वो आगे की तरफ जो है मिस कर रहा था, उसके बैक साइड में बिल्कुल दूसरा रोबोट इंस्टॉल करके उन पीसेस को यूटिलाइज किया जा रहा है। मतलब उनके लिए जगह बनाई जा रही है कि वो भी पिक एंड प्लेस करके पैक कर दिए जाएं। एंड दिस इज हाउ दे आर वेरी डेलिकेटली पैकिंग समथिंग व्हिच इज आई थिंक ईटेबल or something to use in our kitchen or in our household activities. These are packets, and how delicately they are handling this, you can imagine, and how fast and how precise. So this is how the SCARA robots work in industry. Now we come to cylindrical robotic systems. ये बहुत ही ज्यादा जो है, ये cylindrical robotic system बहुत ही ज्यादा वेल नोन नहीं है इंडस्ट्री में। मैं आपको पहले इसके बारे में बताऊं तो, क्योंकि इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं और ये बहुत ही स्पेशल पर्पस के लिए जो है बनाया जाता है। एक तो इसमें जो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बहुत ज्यादा हम नहीं दे सकते, क्योंकि एज वी से इट इज अ सिलेंड्रिकल रोबोट। तो इसको जो नाम दिया गया है सिलेंड्रिकल रोबोट, वो इसके स्ट्रक्चर के कारण दिया गया है कि एक सिलेंडर टाइप जो है, इसका वर्किंग एनवलप जो है एक सिलेंड्रिकल टाइप रहेगा। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, ये घूम सकता है अपनी जो इसका जो ये पोल है जिसके ऊपर ये आर्म माउंट की गई है, ये लीनियर सर्वो मोटर जो लगाई गई है, ये दूसरी सर्वो मोटर के जो ये शाफ्ट है इसके ऊपर माउंट की गई है। तो ये घूम सकता है अपनी एक्सिस के अलोंग, और उसके बाद ये जो है अप एंड डाउन की मोशन कर सकता है। तीसरी अप एंड डाउन जा सकता है। और तीसरा इसकी जो ये एक्चुएटर है जो कि एक्स और एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ठीक है, जैसा कि आपको इमेज में भी देखने को मिल रहा है। सो इसका जो वर्क एनवलप है वो स्फेरिकल शेप का बनता है। दैट्स व्हाई दे कॉल्ड स्फेरिकल रोबोट्स। बहुत ज्यादा इनका वैसे यूज नहीं है इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी काफी सारी एप्लीकेशंस हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स which requires the special kind of robotic designs. So उसमें ये आता है और वहां पे यूज किया जाता है। क्योंकि अब हमें जैसे स्पोर्ट वेल्डिंग की एप्लीकेशन सबसे पहले लिखी हुई है, मैं इसका एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। स्पोर्ट वेल्डिंग करने के लिए हमें एक जो स्पोर्ट वेल्डिंग गन होती है उसकी जरूरत पड़ती है, और वो जो गन होती है उसका मोशन जो है वो अप एंड डाउन ही रहता है। तो ऐसी गन को हम जरूरी नहीं है कि 6 एक्सिस रोबोट पे लगाएं तभी वो बढ़िया से काम कर पाएगी। हमें तो जस्ट स्पोर्ट वेल्ड करना है ना, तो हम उसको किसी भी ऐसी मशीन पे या ऐसे स्ट्रक्चर पे माउंट कर सकते हैं जो कि हमें अप एंड डाउन की, साइड बाय साइड की एंड रोटरी मोशन, 3 टाइप के मोशन दे रहा है। सो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर अस। तो स्पोर्ट वेल्डिंग में इसको यूज कर लिया जाता है। डाई कास्ट मशीन हैंडलिंग में यूज इसको कर लिया जाता है। जनरल मशीन हैंडलिंग बेसिकली हाइड्रोलिक जैक्स, जो जैक होते हैं, तो जैसे जैक काम करता है ना कि अगर उसके ऊपर कुछ अगर लोड उठाना हो, कोई भी मटेरियल को उसको लिफ्ट करना हो, तो जैक का जो सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन होता है वो किस तरीके से रिलीज होता है। तो सिमिलर वे में सिलेंड्रिकल रोबोट्स में भी यही काम होता है। ये जो है अपनी इस सकता है और रेसिप्रोकेट कर सकता है टू एंड फ्रो मोशन में। तो इसी वजह से इसको जो है
मशीन हैंडलिंग में भी यूज किया जाता है, क्योंकि रोबोट्स, अगर 2 सिलेंड्रिकल रोबोट्स हैं बड़े हैं जिनका पेलोड कैपेसिटी काफी है, सब लेट्स से 2 रोबोट्स हैं, दोनों का पेलोड कैपेसिटी ओवर 100 केजीज है, ठीक है, तो यानी कि दोनों जो है 100 केजीज का वजन उठा सकते हैं। अब मुझे कोई ऐसा मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, जिसका वेट अराउंड 60 केजी है, तो मैं उसको अगर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना चाहता हूँ घुमा के, मैं एक साइड उस पे कोई काम कर रहा हूँ और अब मुझे अपनी दूसरी साइड उसको ले जाना है, तो मैं वहां पे इस टाइप के रोबोटिक सिस्टम इंस्टॉल करूंगा, ठीक है, ताकि जब भी एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाए ऑब्जेक्ट को उठाकर दूसरी जगह पे रख सके। Obviously, it can grind something smoothly and nicely. असेंबली ऑपरेशंस में, यस, असेंबली ऑपरेशंस में इस तरीके से काम आते हैं, जैसे गाड़ी के अंदर आप डैशबोर्ड देखते हो अपना, तो वो ऐसा नहीं है कि वो फिक्स होता है पहले ही या फिर उसको अंदर ही गाड़ी के अंदर कास्ट किया जाता है। वो डैशबोर्ड ये सब जो है अलग से माउंट किए जाते हैं और उनकी माउंटिंग के लिए गाड़ी के अंदर ये पिक करके लाते हैं दूसरी जगह से और घूम के फिर गाड़ी के अंदर इसकी ये जो एक्चुएटर है, ये एक्चुएटर, ये जो लीनियर सर्वो लगी हुई है, इसकी आर्म एक्सपेंड होती है to the chest, स्क्रूइंग की जाती है उसके अंदर या फिर जो है उसको वेल्ड किया जाता है, तब बाद का काम किया जाता है, पहले रोबोट से वहां पे उसको पहुंचाया जाता है। सो ऑल दीज काइंड ऑफ स्टेप्स आर डन विद दिस, है ना, XYZ, उसी टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पे ये काम करते हैं। Now we will see how it moves along its axis. ये देखिए, ये टू एंड फ्रो मोशन हो गया, ये देखिए, अब ये इस क्यूब को उठाने के लिए नीचे जा रहा है धीरे धीरे, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल No, sir. Any questions you want to ask? No, sir. No, sir. Okay. चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आता है सबसे मेन जॉइंट रोबोटिक्स में, इंडस्ट्री हो, मेडिकल साइंस हो, जैसे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, या फिर स्पेस इंडस्ट्री हो जैसे इसरो है, डिफेंस इंडस्ट्री हो, DRDO है, TBRL है, कहीं भी कैसी भी इंडस्ट्रीज हो, वर्टिकली आर्टिकुलेटेड रोबोट्स ने जो अपना स्पेस बनाया है, अपनी पहचान बनाई है, वो आई गेस अभी तक किसी भी रोबोटिक सिस्टम ने नहीं किया, क्योंकि ये एक ऐसा फ्लेक्सिबल सिस्टम है जिसके अंदर हमें 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिलते हैं। XYZ का मोशन, उसके बाद WPR, दैट इज या पिच एंड रोल, और ये 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है इनके अलोंग रोटेशन, तो टोटल 12 तरीके से ये जो है मूव कर सकता है। अब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये हमारे शरीर से मिलती है हमें, यानी कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, रिक्वायरमेंट घुमा सकते हैं,
प्लेस हो, मटेरियल हैंडलिंग हो, पैलेटाइजिंग हो, पैकेजिंग हो, मेडिकल ऑपरेशंस हो, पेंटिंग हो, मशीन टेंडिंग हो, वेल्डिंग हो, ब्रेजिंग हो, ठीक है ना, किसी भी टाइप की एप्लीकेशन हो, दे आर यूज्ड एवरीवेयर। और धीरे धीरे जो है इनको भी आगे, जैसे एक रोबोटिक सिस्टम होता इंस्टॉल करते थे, मतलब पहले किए जाते थे, तो ऐसा लगता था कि कुछ ऑटोमेट हुआ है। अब आगे रोबोटिक सिस्टम्स के साथ क्योंकि पीएलसी का तो ऑटोमेशन में काम रहता ही है, बहुत सारा काम रहता है, एज we use PLC in factory automation and in automation processes to do the operations automatically as per our requirement, as per the data feedback received from sensors. तो अब रोबोटिक सिस्टम्स को भी इस तरीके से फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा इंस्टेंट रेडी डिवाइस आती है एक, वो हालांकि उस टेक्नोलॉजी को फिलहाल इंस्टेंट रेडी बोलते हैं, इसके टूल पे लगा दी जाती है, रोबोटिक आर्म के टूल, जहां पे टूल माउंट होता है रिस्ट असेंबली के पास, और उसको क्लैंप करके हम उसको पकड़ के रोबोट की आर्म को अपने अकॉर्डिंग मूव करा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी एंगल पे, किसी भी रोटेशन पे, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पोजीशन करके हम टीच कर सकते हैं। तो उस लेवल तक जो है वर्टिकली आर्टिकुलेटेड रोबोट्स जो हैं टेक्नोलॉजी को ले गए हैं, क्योंकि इन्होंने आर्टिकुलेटेड रोबोट्स के वजह से ही जो है बहुत सारी एप्लीकेशंस में रोबोटिक्स को अडॉप्ट किया है इंडस्ट्रीज में। इससे पहले अक्सर ये सोचा जाता था कि रोबोटिक सिस्टम लग गया, काम करेगा या नहीं, कैसा करेगा, खराब हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी, अगर इशू आए तो क्या हमारे पास इंडिया में उतने प्रॉपर शार्प टेक्नीशियंस हैं जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, कॉस्ट कितना पड़ेगा। दिस इज लाइक सोलर एनर्जी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार लग गया, इट विल गो लॉन्ग अवे। ये जो है इस तरीके से इंडस्ट्रीज में ग्रो कर रहे हैं। सो चलिए कोई बात नहीं, ये मैंने आपको थोड़ा सा वाइडर स्कोप बता दिया आर्टिकुलेटेड रोबोट्स का। So these are the 6-axis robots basically, which are mounted on a robotic base and which is generally mounted on ground itself. तो robotic cells में या फिर robotic lines पे इनको mount किया जाता है for welding operation, machine tending, painting, material handling, medical operations, packaging and palletizing. Okay, so this is the vertically articulated robot. Now we will see how they work in industry. ये एक BIW लाइन है, दैट इज बॉडी इन वाइट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चेसी जो होती है, ठीक है, अब चेसी आई और चेसी आने के बाद जो है इसने अपनी, तो BIW फिक्सचर पे जो सेंसर लगे थे, जैसे ही वो क्लैंप हुई डिवाइस, सेंसर्स ने डेटा दे दिया रोबोटिक सिस्टम को कि द ऑब्जेक्ट इज क्लैंप्ड, नाउ यू हैव टू कम एंड वेल्ड हियर, और उसी हिसाब से रोबोट्स ने वेल्डिंग स्टार्ट कर दी। 1980s में चले जाइए एक बार, 1990s में जब मारुति इंडिया में आई थी या दूसरी कंपनीज होंडा कार्स और ये सब जो है धीरे धीरे डेवलप होनी स्टार्ट हुई थी, तो मैनुअल वेल्डिंग प्रोसेस होते थे, अभी भी होते हैं लेकिन बहुत कम जो है मैनुअल प्रोसेसेस रह गए हैं। अब जो है सारे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो स्विच कर चुके हैं रोबोटिक प्रोसेसेस पे, तो मैनुअल वेल्डिंग होती थी। अब एक दिन में कितनी गाड़ियों की चेसी जो है आदमी वेल्ड कर सकता है,
तो और फिर वेल्ड करने के बाद भी उसकी टेस्टिंग, उसको मतलब वो क्वालिफाइड वेल्डर होना चाहिए। और एक वेल्डर कितनी चेसी वेल्ड करेगा? 2 4 5 10, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि 100 से 150 इंच वेल्ड करना एक वेल्डर के लिए दिन में बहुत बड़ी बात होती है। वेल्डिंग को अक्सर इंचेस में काउंट किया जाता है बाय द वे। और फिर एक वेल्डर के लिए इतना ज्यादा कॉस्ट था, तो फिर अपनी प्रोडक्शन को मीट करने के लिए, अपनी जो डिमांड थी उसको मीट करने के लिए कंपनीज को बहुत सारे वेल्डर हायर करने पड़ते थे। और अब क्या है, अब 50 रोबोट लगा दिए और दिन में 5000 6000 गाड़ियां बन के निकल रही हैं आराम से। सो यू सी कि एज टाइम पास्ड, the challenge to meet the requirement of production order, how it is achieved and how it is completed by the definition of the industrial robotics. उनको implement करके किस तरीके से अचीव किया गया, ये अब आप देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले वैसे वेल्डिंग रोबोट्स का मैं उस पे हम पार्ट पे जाएंगे नहीं, चलिए बता देता हूँ। 1960s में सबसे पहले MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कुछ बंदों ने, जनरल मोटर्स, अगर आपने नाम सुना है तो जनरल मोटर्स ने उनको एक प्रोजेक्ट दिया था कि आप हमारे लिए ना एक रोबोट टाइप सिस्टम बनाइए, रोबोटिक आर्म बनाइए जो कि वेल्डिंग कर सके। तो सबसे पहले 1960s में उन्होंने काम स्टार्ट किया। इन 1962 व्हेन इंडिया लॉस्ट फ्रॉम चाइना, उस टाइम पे जीएम ने, जनरल मोटर्स ने अपने प्लांट में स्पोर्ट वेल्डिंग रोबोट्स एंड मिग वेल्डिंग रोबोट्स जो है इंस्टॉल करवाए। तो 1962 से वो लोग रोबोटिक वेल्डिंग कर रहे हैं और इंडिया में तो ये पिछले 8-10 साल में ही जो है उभर के सामने आया है। So you can imagine how good the technology is. इसने 50 साल में कितनी ज्यादा डेवलपमेंट कर ली है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग आर्टिकुलेटेड रोबोट्स? हेलो, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm just asking, sir. आपको अच्छे से समझ आ रहा है ना? Yes. Yes, sir. Because Yes, I'm sir. good to complete और जिसको करता हूँ तो हूँ, समझ अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को। ऐसा ना हो कि कल क्वेश्चंस जब आपके सामने आए तो आप जो है एकदम से